Today's topic is relationship. What is relationship? Defining relationship is important if information distributed in multiple tables has to be brought together for same use, like creating queries, forms, reports, etc. To display information from various tables at once. A relationship is made by comparing data in key fields. Usually, these fields are the primary key from one table that provide a unique identity for every record and a foreign key from the other table. For example, people can be associated with their address by creating a relationship between the people's table and address table using the ID number field. In the same way, a student can be associated with their annual result by creating a relationship between the students table and the results table using the roll number field. Relationship is a connection between one table to another. In other words, we can say that relationship is made by comparing data in key fields. Usually, these fields are the primary key from one table that provide a unique identity for every record and a foreign key from the other table. Relationship can be defined when one table linked to another table with the help of primary key or foreign key. Primary key is the unique value of a table and foreign key is also a unique value that connected to प्राइमरी की. रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप दो टेबल के बीच में जो लिंक इस्टेब्लिश होता है या कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है उसी को रिलेशनशिप कहते हैं. जैसे आपने एक टेबल बनाया, स्टूडेंट, एंड सेकेंड टेबल इज रिजल्ट्स. हियर connection is made with the help of roll number field. जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट फील्ड में भी रोल नंबर होगा और रिजल्ट फील्ड में भी रोल नंबर. तो हम लोग स्टूडेंट टेबल को रिजल्ट टेबल के साथ लिंक कर सकते, कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और दोनों टेबल में जो यूनिक फील्ड होगा ये हमारा रोल नंबर होगा. दैट रिलेशनशिप मेड बाय प्राइमरी की which stored a unique values. Next topic is the steps to create a relationship are as follows. आप दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करेंगे उसके लिए स्टेप बताया गया है. स्टेप को ध्यान से देखिए. स्टेप 1, क्रिएट टू टेबल्स, देन open one of them
in the datasheet view and click on the database tool tab on the ribbon. फर्स्टली क्या करना है, आपको दो टेबल क्रिएट करना है, देन उसको ओपन करना है डेटाशीट व्यू में. स्टेप सेकंड, क्लिक ऑन द रिलेशनशिप फ्रॉम रिलेशनशिप ग्रुप. वी कैन सी शो टेबल डायलॉग बॉक्स. अब आपको क्लिक करना है रिलेशनशिप पे. जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा शो टेबल. देन स्टेप थर्ड, चूज टेबल एंड क्लिक ऑन द ऐड बटन. आपको टेबल पे क्लिक करना है और ऐड बटन पे क्लिक करना. देन स्टेप फोर, क्लिक ऑन क्लोज बटन. अब आपको क्या करना है, क्लोज करना. These are the dialog box where displayed relationship options of database tools, and here is show table, and all the table are displayed in a list. You can see there address of a student and report card. In step 5, drag the primary key of the prime table and drop it in the same field in the secondary table. Here result table. You can see an edit relationship dialog box. Here both table can be inserted and you can drag from ID to ID. It will establish a relationship. Step 6. Click on the create button. The relationship is created and save the file. After that, click on create option and save the file. It will establish a relation between table. Next topic is how to open a pre-existing database in Microsoft Access. जो पहले से आपका डेटाबेस बना हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, उसको आप कैसे ओपन करेंगे, उसके लिए स्टेप दिए गए हैं. इस स्टेप को फॉलो कीजिए. स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल एंड सेलेक्ट ओपन. We observe that the open dialog box has appeared. Step 2, search for the folder in which the database was saved. उस फोल्डर को सर्च कीजिए जिसमें डेटाबेस आपने सेव किया. Step 3, click on the database which has to be opened and then click on the open button. डेटाबेस को सेलेक्ट करके देन ओपन बटन पे क्लिक कीजिए. तो क्या होगा, आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा. हेयर गिवन एग्जांपल, क्लिक ऑन फाइल, ओपन, देन ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर्स. टाइप द नेम ऑफ डेटाबेस और सेलेक्ट द डेटाबेस एंड क्लिक ऑन ओपन बटन. With the help of these steps, we can easily open an existing database. जो पहले से डेटाबेस बना हुआ है आपके कंप्यूटर में, उसको आप आसानी से ओपन कर सकते हैं. नेक्स्ट, let us remind. Database is an organized set of data that is stored in a computer and can be used in various ways. Database क्या है, ऑर्गेनाइज सेट ऑफ डेटा है जो आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड होता है डिफरेंट वेज में. नेक्स्ट, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम is a collection of organized data item in the form of tables. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये कलेक्शन है ऑर्गेनाइज्ड डेटा आइटम्स का इन द फॉर्म ऑफ टेबल. आप जानते हैं टेबल में रो एंड कॉलम होते हैं.
A database table in a database contain the actual data, और डेटाबेस टेबल में ही हमारा एक्चुअल डेटा होता है। MS Access is renowned RDBMS package, a part of Microsoft Office. Microsoft Access Microsoft Office का पार्ट है और ये RDBMS पैकेज है। टेबल स्ट्रक्चर इज एन इंडिकेशन ऑफ द काइंड ऑफ टेबल दैट इज टू बी क्रिएटेड। टेबल स्ट्रक्चर है हमारे टेबल का जो इंडिकेट कर रहा है काइंड ऑफ टेबल दैट इज टू बी क्रिएटेड। किस टाइप का टेबल आपने क्रिएट किया है, उसके डिफरेंट फील्ड्स क्या है, ये बताता है टेबल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, प्राइमरी की। प्राइमरी की इज यूज टू रिलेट अ टेबल टू अनदर की इन अदर टेबल। प्राइमरी की एक यूनिक वैल्यू होता है जो आपके टेबल में स्टोर किया जाता है और अनदर टेबल से रिलेट करने के लिए भी यूज करते हैं, और रिमूविंग डुप्लीकेट वैल्यूज टू स्टोर यूनिक वैल्यूज इन अ फील्ड वी हैव टू यूज प्राइमरी। मैनिपुलेशन रेफर्स टू चेंजिंग डेटा एंड मॉडिफाइंग इट फॉर यूज। मैनिपुलेशन के अंतर्गत आप चेंज कर सकते हैं, डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। रिलेशनशिप इज कपलिंग इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन मल्टीपल टेबल फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग क्यूरीज, रिपोर्ट, फॉर्म्स, रिपोर्ट etc। रिलेशनशिप हमारे डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज होता है, जिसमें आप मल्टीपल टेबल्स को, बहुत सारे टेबल को आपस में रिलेट कर सकते हैं और आसानी से आप क्यूरीज बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप। नेक्स्ट, सम क्वेश्चंस आर गिवन, all have to solve all the questions given in this chapter.